and welcome to the News Now TNN Spotlight. स्पॉटलाइट जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपने छोटे से करियर में इतना नाम कमाया जिससे पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के साथ साथ उनका नाम तो बुलंद हुआ ही, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे यहाँ के युवाओं ने अपना नाम स्थापित कर दिया। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ इस समय है और आपको मैं बताना चाहूँगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक बहुत पॉजिटिव सी वाइब आ रही है ये बताते हुए कि आई एम सिटिंग एट अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ अ पॉजिटिव अरोमा। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू गौतम बाली। गौतम जी, आपका हमारे शो स्पॉटलाइट में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कंग्रेचुलेट यू एंड आई एक्चुअली वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू कि आपके यहाँ का ऑरा इज़ सो पॉजिटिव। यहाँ जैसे ही यू स्टेप इन you feel like okay, this is entirely a different world. How did you get an idea of getting into this positivity? पहले तो यहीं से शुरू करना चाहूँगी। अगर पॉजिटिविटी की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी तब आती है जब हम एक अपनी रियल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो व्हेन यू बिकम अ रियल पर्सन, जो आपके अंदर की वाइब्रेशंस हैं, व्हेन यू रेडिएट टू अदर पर्सन, व्हेन द पर्सन फील योर रियल वाइब्रेशन, तो दैट्स व्हाई पीपल फील इट्स अ वेरी पॉजिटिव ऑरा। बहुत सही बात कही गौतम जी की पहली ही बात है बी रियल। सो व्हेन यू बी रियल द वर्ल्ड विल बी रियल टू यू। और जब रियलिटीज़ मिक्सअप होती हैं, अमालगमेट होती हैं, तो और ऑटोमेटिकली एक अरोमा बनता है, एक ऑरा बनता है जो फुल ऑफ पॉजिटिविटी होता है। और इसी पॉजिटिविटी को लेकर के शायद आपने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की होगी। सो वी वुड लव टू हेयर यू एज अ पर्सन। आपने कहाँ से अपने करियर की शुरुआत की और हाउ डिड इट केम टू योर माइंड कि मुझे आई नीड टू एंटर इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी? सो इफ यू टॉक अबाउट माय जर्नी, अगर आप सुनोगे इस बारे में तो यू विल फील लाइक यू आर हियरिंग अ स्टोरी ऑफ अ ब्लॉकबस्टर मूवी, फ्रॉम हाउ a small town boy came to the big city and achieved the dreams and opened a big studio and achieved the name and fame. So जैसे कि सब लोग जानते हैं, I belong to a small town of Rajouri. That's I think 150 kilometer from where I'm sitting right now. So बचपन कैसे शुरू हुआ? Like I was very creative from my childhood. I used to do painting and studies में I was like okay, but in the other cultural activities. We can get a glimpse of your creativity through the ambience we are sitting in. So अगर मैं creativity की बात करूँ तो it was inborn actually. So when I was in UKG or you can say the first, second standard, ठीक है, I used to make sketches from that time only. So it was inborn. So जैसे लाइफ में बड़े होते गए, ठीक है, I keep on watching people, I keep on watching my mother doing makeup. So I was very fascinating toward this thing. I was feeling very like, you know, कि this is very interesting and moreover, you know, it belongs to the colors and that was a very interesting part. So this is how it started out. And when I did my 8th standard, I was in 8th standard that time when I started doing henna on the hands, and that how my career took the turn from there, from henna to makeup. It was all like a, you know, a self-going journey. There was no mentor and there was nobody who can guide you up कि this is the right thing to do. I am a self-taught artist. I didn't get any training in my career. Like till now, I didn't get any training. It was just updating courses where we get the knowledge about the new products, the international products. But the journey starts from
From my schooling, I was into dancing, I was into painting, I was into all cultural activities. Like one of the pre-active mind Yes. which was very much creative and which was actually colorful inside. Exactly. And you wanted to paint that world with your colors. Exactly. So it was very interesting, and self-confidence is a thing which makes your dreams come true. I was really very self-confident about what I'm doing. The confidence level which we needed, it was there from my childhood. I didn't care about the what people are talking about me, what world is thinking about me. I didn't care about anything. I was just after one thing, that I have to be something and I have to follow my dreams. That was the thing which took me ये here. एक बहुत अच्छी बात आपने कही गौतम जी कि हम दर्शकों को भी यही बताना चाहेंगे कि when you follow your dreams, nothing can stop you in this world. Exactly. क्योंकि आप अगर जैसे उन्होंने पहली ही बात कही कि you need to be real. अगर आप अपने आप से रियलिटी में बात करते हैं, you are being real to your own self. आप अपने आप से सच्चे हैं तो दुनिया से अपने आप ही True. आप सच्चे हो जाएंगे. और सही बात है कि जब आप सच्चे होते हैं तो आपके लिए दुनिया खुद आगे चल के आती है और इस तरह की पर्सनालिटी आपको दिलाती है. गौतम, Thank you आज so जानना चाहेंगे आपसे कि आप, क्योंकि आप कह रहे हैं यू आर अ सेल्फ टॉट सेल्फ ट्रेन मैन, वर्ल्ड ऑफ कलर्स एंड दैट टू अ ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ कलर्स, क्या लगता है, क्या ग्लैमर लाइफ में होना, नॉर्मल लाइफ में होना कुछ चेंज लाता है जीने के ढंग में? मैं अपनी लाइफ को अगर देख के बताऊंगा, बहुत ज़्यादा चेंज लाता है. ग्लैमर गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द ग्लैमर, you feel like you don't belong to this world. When I started doing all this makeup and all and this thing, my family didn't support me. Okay? Because obviously it is very hard to, that time is, I'm talking about like 12-15 years ago. बिल्कुल. और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, एक छोटा, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, एक छोटी जगह है जहाँ पे लोग अक्सर कंजर्वेशन में रहते थे, People are कंजर्वेटिव stereotyped. एटीट्यूड के लोग जो आज भी कहीं ना कहीं वहाँ देखने को मिलता है. ऐसे माहौल में वहाँ से निकल के आना और एक ऐसा वर्ल्ड चुनना, एक ऐसा फील्ड चुनना, ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा आपके लिए, थोड़ी आपको कॉन्ट्रडिक्शंस भी मिली होंगी लाइफ बिल्कुल, there were lots of ups and downs. All right, it's not like, it's not easy to achieve something. You have to do hard work, you have to struggle, and you have to learn from your mistakes. So this is what I feel like. Once you know that where you are wrong. आपने एक ऐसी बात कर दी जो बहुत सही है हमारे यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे, लाइफ इज नॉट विदाउट स्ट्रगल्स. Life is not, it's struggle. If we'll talk about few people learn from the struggle, ठीक है, and few people वो छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है फिर लिए. तो एक जो They give एक up. लड़ने की स्पिरिट है कि यस आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ, वो शायद आपके अंदर थी जिसने आपको उस एक कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर से निकाल के वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनली रिनोन करा दिया. See, वो इसलिए हुआ because I was not having another option. ठीक है, my parents were after me, do your studies and do whatever you want to do. I said no, I don't want to study like further. I want to pursue my career in this field. ठीक है, they was not like in the supporting. Later on they started supporting me also. ठीक है, जब ऐसी situation आ जाती है, you feel like do or die. ठीक है, I love myself, I can't die. Alright, तो या तो करना ही था. Like you have to hard work, day night. Like मेरे स्टार्टिंग करियर के like 6 years, ना मैंने दिन देखा ना मैंने रात देखी. I was just after this glamour world. कहते जब ग्लैमर सर चढ़ कर बोलता है तो बहुत बुरा बोलता है. ठीक है, लेकिन कहा जाता है. उसमें सबसे बड़ी बात गौतम जी आपके जरिए हमें ये समझ में आती है कि जब सर चढ़कर आपका जुनून बोलने लगे ना, तो यू डोंट हैव टू गिव इट अप. No. यू हैव टू प्रूव योर ओन सेल्फ कि हाँ आई विल सस्टेन. एंड जो आपने अभी बात कही, फिर एक और ऐसी बात आपने कही थी कि मतलब आई एम गेटिंग थॉट्स फॉर लाइफ टुडे मैन. एक ऐसी बात इन्होंने कही, लव योर सेल्फ. ये एक Exactly. बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको स्ट्रगल के दौरान, और ऐसे स्ट्रगल के दौरान जो फील्ड आप बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी से, आपके जेंडर से बिल्कुल अलग फील्ड जब आप चूज़ करते हैं, तो सबसे पहला काम आप ये करें गौतम जी की तरह, लव योर सेल्फ. क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप अपनी स्ट्रगल्स के साथ भी प्यार करेंगे, और स्ट्रगल्स के साथ प्यार करने से स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं. बिल्कुल होते हैं. गौतम, जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने इंटरनेशनली और नेशनली
कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हासिल की हैं जिनके लिए आपको लगता है यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट यस आई हैव अचीव्ड दिस एंड दिस वाज माय ड्रीम? See, after my 3 or 4 years struggle, you can say, when I was working out, when I was discovering like new things, कि क्या कैसे करना है, that was the time when I feel like now I need more product knowledge. Then I traveled Dubai in Marina, and I was in VLCC at that time, and that training session, that updating course really helped me a lot in that. So मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हम किसी करियर में को चूज़ करते हैं, उसकी बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज यू नीड टू हैव दैट. जब हमें प्रॉपर नॉलेज होती है कि हम क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कैसे नहीं करना है और कैसे करना है, जब हम बेसिक्स जान जाते हैं ना, तो थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर अस. और शायद यही एक कारण रहा है कि आप चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, ऐसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो चाहते हैं इस वर्ल्ड में आना, तो उनके लिए आपने एक अकेडमी स्टार्ट की यहाँ पे? Yes, we have started that makeup studio and academy, and in my academy, if we'll talk about मेरी academy में, the way we teach is a totally different from other people. ठीक है, लोग कोर्स देते हैं, right? A to B to Z, alright. But I actually educate people in that way कि प्लस पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं. ये बहुत ज़रूरी बात भी है कि आप इफ्स एंड बट्स का जब ध्यान रखते हैं तो डूज एंड डोंट्स का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल ज़रूरी है. अब रिसेंटली मैं अपने कोर्स के बारे में बात करूँगा. आई वॉज हैविंग लाइक 3-4 गर्ल्स इन माई लाइक लास्ट कोर्स, जिनका मुझे लग रहा था दे डिडंट कंप्लीटेड वेल. ऑलराइट, उन्होंने, उनका पिकअप पावर इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने प्रॉपर कवर अप नहीं किया. आई गेव 15 days एक्स्ट्रा क्लासेस टू देम आउट ऑफ माई कोर्स. ठीक है, दैट वाज ऑल मी बिकॉज आई एम हेयर टू मेक न्यू आर्टिस्ट. आई हैव टू क्रिएट अ न्यू यूथ, जहाँ पे लोग बोलें कि नहीं, वी हैव जम्मू में अगर हम बात करें कि हमारे पास इस फील्ड में हमारे पास अच्छे एजुकेटर्स भी हैं, ठीक है, अच्छे मेंटोर भी हैं. आई डोंट वांट टू बी क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट वांट टू बी गुड टीचर, आई वांट टू बी अ मेंटोर, जहाँ पे लोग बच्चों को लगे कि नहीं, कि सिखाया तो जाता है मगर गाइड भी किया जाता है. तो जहाँ मुझे लगा कि मेरे बच्चों को थोड़ा सा पिकअप पावर कम है रेस्ट ऑफ द, if you compare with the rest of the students, so I gave 15 days more, and if you see, they are doing and performing better than others. That's what I feel like. ये एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि since you are into a world of beauty, ठीक है, आपके पास बहुत सारे बच्चे भी ऐसे आते होंगे आपके एकेडमी में जो परस्यू करना चाहते हैं, आप ही की तरह इस लेगेसी को आगे लेके जाना चाहते हैं. लेकिन जम्मू और कश्मीर अगर हम बात करें, अभी भी as per the mind exposures we are not exposed to the glamour world. जिस तरह से ग्लैमर वर्ल्ड को बाहर देखा जाता है, उस तरह से जम्मू कश्मीर में अभी इस ब्यूटी सैलून्स और अकेडमीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. क्या कहना चाहेंगे आप हमारे यंग लोगों को कि, और ख़ास तौर पर उनके पेरेंट्स से, कि क्या बच्चे यहाँ के यंग जनरेशन जो है इसे ब्यूटी वर्ल्ड को एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन आगे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज अगर हम अभी की बात करें दैट लाइक जैसे माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है, राइट. पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट दैट वी डू हैव अ करियर इन दिस फील्ड because we can take this career to the academic level. They can be a good mentor. If you don't want to stay in their state, they can move outside the state also. We have a lot of scopes in abroad also. ठीक है, तो अभी पैन इंडिया की बात करो या अब आउट ऑफ इंडिया की बात करो, मेकअप आर्टिस्ट एंड दिस लॉन इंडस्ट्री हैव ग्रोन सो मच एंड यू कैन मेक ए करियर इन दिस. यू कैन अर्न लाइक एनीथिंग. यही बात मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स की सबसे पहली जो ख्वाहिश होती है कि बच्चों ने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, ओके नाउ दे शुड स्टार्ट अर्निंग, बिकॉज अर्निंग इज अ बिग डील है. एग्जैक्टली. तो क्या इज इट सो रिवॉर्डिंग that people can earn out of this profession? Of course, because it's, see, when we'll do like lot of studies, when people do master, PhDs, after that what happens? They get jobs. Why people do job? Just to get earning, just to get Exactly. good amount of money. Right. We have good amount of money also in this profession, and people really good. That was a time when people do not get the respect of, you know, in this profession. Exactly. Okay, salon industry hai, like glamour industry hai, then people have a was not having that much broad mindset कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है. Now people, An amount of disrespect was seen among exactly, people. exactly. But now it is not like that. It has been changed, and now people understand the talent also. And of course, if we talk about these, the parents are also supporting, right? But emotionally, they
now they're getting support financially, parent support. नहीं, if you wanna go to the London makeup store, wherever you wanna, we'll invest in you and choose a career. ठीक है? Now that आज की generation के पास they have many choices. Like that time when we were like growing up, we were not, हमें choices नहीं मिलती थी उस time पे that you have to choose. No, अगर आपको बनना है, like I left house when I was 18-year-old, so it was important. It was necessary for me. कहीं ना कहीं ये भी बात है कि बच्चों को थोड़ा सा फ्री माइंड दे दीजिए टू चूज देयर करियर. इफ दे वांट टू एंटर दिस ब्यूटी वर्ल्ड, लेट देम and shower your blessings, shower your colors to them, and See, then they will do wonders like see Gautam. what we people do, हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट बना देते हैं कि वो हम पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि 25, 26, 27 ईयर तो दे लिव विद देयर पेरेंट, और वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं. ठीक है? लाइक अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो बच्चों को, अगर आप बच्चों पे उन्हीं पे ही डिपेंड है, डैड पेरेंट्स के बिजनेस पे डिपेंड है, उनको इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती, तो दे शुड स्टार्ट अप देयर ओन, राइट? तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया में देखोगे, इट्स लाइक जब 18 एंड 19 ईयर ओल्ड, ठीक है, व्हेन दे गेट द, लाइक ठीक है आप अब एलिजिबल हो टू वर्क आउटसाइड, बच्चे अपना करियर खुद चूज़ करते हैं. तो ये चॉइस पहले नहीं थी, बट नाउ दिस जनरेशन इज़ वेरी लकी दैट चॉइस इज़ देयर टू चूज़ द करियर दे ओन, कि वो चूज़ कर सकते हैं. Since you are in running your own academy and you are into this business right from your childhood, I must say. Yeah. What do you think? गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसे अकेडमीज यहाँ पर सेट करने चाहिए सो दैट यंग माइंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गेट एन आइडिया ऑफ अ कलरफुल वर्ल्ड लाइक दिस, गेट एन आइडिया, जैसे वो स्टार्टअप्स की बात करते हैं. आई थिंक दिस इज स्टार्टिंग अप अ सलून, स्टार्टिंग अप अ ब्यूटी वर्ल्ड, स्टार्टिंग अप अ ब्यूटी अकेडमी इज़ अ गुड स्टार्टअप. आई थिंक क्या गवर्नमेंट को इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए जम्मू कश्मीर? बिल्कुल करना चाहिए. आई गेस वो कर रहे हैं अभी. आउटसाइड में जम्मू की बात करूँ, सी इफ विल टॉक अबाउट द ब्यूटी एट वेलनेस जोन, ठीक है, तो अब जो BWSS, द ब्यूटी ऑफ वेलनेस स्किल काउंसिल जो है, देर ऑल्सो सपोर्टिंग, बस नाउ देर सपोर्टिंग फॉर द गर्ल चाइल्ड, वो उनको ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग in this field also. So you think that, and I'm also planning to get in touch with those people, so I'm planning to get a proper registration in that, so my studio will also get the like registered from the government. I just want this thing, because we think if we are running such academies and we get a government support for that, providing scholarship to rural belt and bringing along children from rural belt towards this beauty saloon and beauty world, आई थिंक शायद कहीं ना कहीं हमारी टैलेंट ग्रूमिंग की जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शोकेस हो पाएगी. Exactly, we want this thing, that because there were a lot of crowd. If you see, there were a lot of not even girls, for boys also outside the rural development, जो rural areas हैं हमारे बाहर जितने भी outskirt में पड़ते हैं, ठीक है, there were a lot of young talent there. I have met few girls in a show where I used to go there as a judge, as a guest. So I have seen a lot of girls having a lot of talents. And it's beautifully present, but they don't get exposure, they don't get a platform there. So I'm here to give them a platform. They can groom themselves, at least they can achieve whatever they want to be in life. Exactly. I have guys, so many girls. You have a wonderful choice, you have a wonderful opportunity to meet Gautam and take benefits from his academy. Gautam, आपसे एक बात और ये जानना चाहेंगे कि which is the inner part of Gautam Bali which you like the most? Being a human being, a general common human being a small town boy, or being an aura in the glamour world? I love that part where, see, I don't believe in being so fake, right? I am real and sitting in front of you, whatever I am. Exactly. So this is my aura. I just believe in the positivity, spread positivity, and I love to give, you know, the education. I love to give my views to everyone. I keep meeting people, keep talking to them. I love talking to and meeting the people. That's my best thing. So you actually love the small child in you. You can say. Because मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा real और Exactly. कुछ नहीं So होता है. And if you believe, like you already said, you are a real person. You don't want fakeness. Yeah. तो I love listening to the people. शायद Especially, यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं. I love to listen people. Like मैं सुनता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स हो, उनकी चाहे कॉम्प्लिकेशंस हो, उनके अप्रेंसिव जितने भी इश्यूज होते हैं, I listen to them. Then I think of it like how I can help them out. Right. This thing. So if
we reach somewhere, and if your inner part won't feel like helping somebody, then I feel like you're useless. एग्जैक्टली सो एक ह्यूमन वैल्यू जो है वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और अपनी ह्यूमन वैल्यू को कभी भी मरने नहीं दीजिएगा। शायद यही ह्यूमन वैल्यू गौतम के अंदर बचपन से रही है, जिसको लेकर के वो इतना आगे बढ़े कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम है, और लोग बहुत दूर दूर की जगहों से उठकर इनके पास यहाँ जम्मू में आते हैं ताकि वो इस ग्लैमर एंड ब्यूटी वर्ल्ड में आकर के अपना एक मेकओवर कर सकें। गौतम, आप हमारे साथ स्पॉटलाइट में जुड़े और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा की, और सबसे बड़ी बात आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि जो आपकी एकेडमी चल रही है उसकी वजह से काफ़ी यंगस्टर्स को इस ब्यूटी वर्ल्ड के अदर साइड के बारे में बहुत ज़्यादा पता चला है, और उसके लिए J&K will always be thankful to you. Thank you so much. Thanks a lot for conversing with us in Spotlight, and we look forward for your growth in future as well. Thank you so Thank you much so for much, having me. Gautam. तो आज स्पॉटलाइट में बात हुई गौतम बाली से, गौतम बाली के ही स्टूडियो और एकेडमी में, और आज हमने जाना कि इनकी तरह आगे बढ़ने के लिए, इनकी तरह इंटरनेशनली रिनोन्ड होने के लिए सबसे अहम दो बातें, पहला आप अपने आप से प्यार करें, और दूसरा बी रियल, जो आप हैं वही आप सामने रखें, तब आपके लिए आगे बढ़ने के लिए कोई हर्डल सामने नहीं आएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे और दुनिया आपके साथ साथ पीछे चलती जाएगी। सो कीप फॉलोइंग अस ऑन TNN वेब स्पॉटलाइट फॉर मोर सच पर्सनैलिटी इंटरव्यूज, एंड वी प्रॉमिस यू हम आपको इसी तरह की ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलाते रहेंगे जिनको देखकर आप सच में एनकरेज होंगे और जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद बंधेगी। तब तक के लिए दिस इज बिंदिया तिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।